السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق سے سورہ کہف کا سورہ واقعہ کا پہلا رکوع پڑھ چکے ہیں اور آج انشاءاللہ دوسرا رکوع ہم پڑھ رہے ہیں۔ ابتدائے سورہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسانوں کی 3 اقسام بیان کی ہیں۔ قیامت کے دن 3 طرح کے لوگ ہوں گے، ایک جو یمین والے ہیں اصحاب الیمین، اور دوسرے اصحاب الشمال ہیں، اور تیسرے السابقون الاولون ہیں۔ ان میں سے اصحاب الیمین کا تذکرہ گزر چکا اور آج اصحاب الشمال کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے دلائل ذکر کیے ہیں جن سے عقیدہ آخرت اور عقیدہ توحید دونوں برابر اور یکساں طور پر بالکل کھل کر واضح ہو جاتے ہیں، اور پھر کفار کو اس بات سے ڈرایا ہے کہ ساری چیزیں سمجھ آ جانے کے بعد بھی اگر تم نہیں مانو گے پھر تمہارے ساتھ کیا جو ہے وہ رویہ اختیار کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو اصحاب الشمال کا تذکرہ آیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ۔ یہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بائیں ہاتھ والے ما اصحاب الشمال کتنے ہی برے ہیں۔ پہلے ہم نے دائیں ہاتھ والے پڑھا اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، یعنی کیا ہی خوب ہیں، کتنے ہی بہتر ہیں دائیں ہاتھ والے۔ اب یہاں پر چونکہ برے لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے یا الٹے ہاتھ والے ہیں، تو یہ میں نے پہلے واضح کر دیا تھا، یمین اور شمال ایک تو دائیں طرف اور بائیں طرف ہو سکتی ہے، یا یہ ہے کہ جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ تو آج وہ لوگ ہیں یا تو وہ اللہ کی بائیں جانب ہوں گے یا پھر ان کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھمایا جائے گا۔ واصحاب الشمال، اور بائیں طرف والے ما اصحاب الشمال کتنے ہی برے ہیں بائیں طرف والے۔ فی سموم و حمیم، فی سموم، سموم جو ہے یہ زہریلی یا بہت سخت لو جو ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی شاید اردو میں کہتے ہیں باد سموم ہے، ایک باد صبا ہے اور ایک باد سموم ہے۔ باد صبا جو خوشگوار اور جو ہے بہت خوبصورت اور ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، اور باد سموم جو لو ٹائپ کی ہوتی ہے، بہت زیادہ گرم اور چلنے والی۔ فی سموم، اور وہ زہریلی لو میں ہوں گے، وہ حمیم، حمیم کھولتے ہوئے پانی کو کہتے ہیں، یعنی ان کا رہنے کا مقام جو ہے وہاں کوئی پرامن جگہ نہیں ہے، بلکہ لو جیسی جھلسا دینے والی اور ساتھ کھولتا ہوا گرم پانی۔ وَذِلٍّ مِّن یحموم، اور سائے ہوں گے، ذل سائے کو کہتے ہیں، یحموم ایسا دھواں جو انتہائی گہرا ہو، یعنی وہ سایہ جو ہے وہ درخت کا یا جس کے اندر انسان آرام کر سکتا ہے یا مکان کا ایسا نہیں ہے، بلکہ گھٹن والا اور تلخ اور ترش جو ہے دھوئیں کا سایہ ہوگا۔ سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ لا بارد ولا کریم، نہ تو وہاں ٹھنڈک کا احساس ہوگا اور نہ ہی کوئی عزت افزائی ہوگی۔ لا بارد ولا کریم۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، اب ان کے ساتھ یہ انجام کیوں ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ انہم کانوا قبل ذالک، یہ تھے اس سے پہلے مترفین، بڑی نعمتوں میں پلے ہوئے۔ مترف نعمت جس کو بچپن سے ہی نعمتیں جو ہے وہ مل گئی ہوں یا مسلسل نعمتوں کا استعمال کرتا چلا آ رہا ہو۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، بے شک یہ اس سے پہلے بڑی نعمتوں میں پلے ہوئے تھے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اب نعمت مل جائے انسان کو تو اس کا حق تو یہ ہے کہ اس پر جو منعم ہے، نعمت دینے والا، اس کا شکر بجا لایا جائے، اور اس کو حقیقی معنوں میں اس کی رحمت جو ہے وہ گردانا جائے،
اور وہ لوگ جو نعمت ملنے کے بعد پھر اطراج آتے ہیں اور منعم کا بھی انکار اور اس نعمت کا بھی انکار اور اس نعمت کی وجہ سے اس منعم کے باقی جو دنیا میں بسائے ہوئے لوگ ہیں ان کے اوپر ظلم اور زیادتیاں. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان لوگوں کو کہا کہ نعمتوں کا یہ نعمتوں میں پلے ہوئے اور پھر ان نعمتوں کا غلط استعمال کر کے وَكَانُوا يُصِرُّونَ اور تھے وہ مصر اور تھے وہ اڑے ہوئے علی الحنث العظیم بہت بڑے گناہ پر. حنث عربی زبان میں گناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے, عظیم بہت بڑا, تو بہت بڑے گناہ پر اڑے رہے باوجود اس کے کہ نعمتوں میں پلے, نعمتیں کھائیں, نعمتیں استعمال کی اور ان نعمتوں کی وجہ سے چے جائے کہ یہ اس کے بندے بنتے, الٹا اس کے مخالف اور اس کی بغاوت پر اتر آئے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ اور پھر مصر رہے مرتے دم تک اس پر اصرار کیے رکھا, اسی پر جو ہے وہ اڑے رہے. اس حنث العظیم سے مراد اکثر مفسرین نے تو شرک لیا ہے, یعنی وہ مشرک رہے باوجود اس کے کہ اللہ کی نعمتیں انہوں نے استعمال کی بچپن سے لے کر مرتے دم تک, لیکن وہ اپنے شرک سے بعد نہیں آئے, اس سے ہٹے نہیں. اور کئی مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے ہر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مراد ہے. یعنی کون ہے جو اللہ کی نعمت سے نکل جائے؟ ممکن ہی نہیں. ہر انسان اللہ کی نعمتوں میں ہی پلتا ہے, لیکن اس اللہ کی نعمتوں میں پلنے والا اگر تو اس کا حقیقی معنوں میں بندہ بن جائے اور اس کے احکام کے مطابق زندگی گزار لے تو پھر اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا. اور اگر جو ہے وہ گناہ کا کوئی بھی کام کرتا ہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی نعمت کا گویا کہ انکار کر رہا ہے. تو حنث عظیم سے مراد بال اتفاق تو شرک ہی ہے, لیکن عام تمام جتنے بھی بڑے گناہ ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. وَيُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ اور وہ کہا کرتے تھے اِذَا مِتْنَا کیا جب ہم مر گئے, وَكُنَّا تُرَابًا اور مٹی بن گئے, وَعِظَامًا اور ہڈیوں کے ڈھانچے, أَإِنَّا لَمُبْعَثُونَ کیا دوبارہ بھی اٹھائے جائیں گے؟ نعمتوں میں پلے اور ساری چیزیں دینے کے بعد اب ان کا قول آخر میں کیا ہے کہ جب ہم مر جائیں, مٹی ہو جائیں, ہڈیاں بن جائیں تو پھر کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اور ہم آباؤنا الاولون کیا ہمارے پہلے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ یعنی کتنا تعجب سے جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں, یہ کیسے جو ہے وہ ہو جائے گا. تو اب آرڈر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا, قل اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتائیے, ان کو کہہ دیجئے, ان الاولین والآخرین, تم اور تمہارے باپ دادا ہی نہیں, جتنے شروع سے لے کر چلتے آ رہے ہیں اور جتنے قیامت تک آئیں گے, قل ان الاولین والآخرین, کہہ دیجئے بے شک تمام پہلے اور پچھلے, لمجموعون جمع کیے جائیں گے, الی میقات یوم معلوم ایک مقررہ وقت پر جو کہ معلوم ہے, ایک معلوم دن کے مقررہ وقت پر یقیناً سب کو اکٹھا کر لیا جائے گا. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون پھر اس وقت اے گمراہو, ثم انکم پھر بے شک تم, ایھا الضالون اے گمراہو, المکذبون جو جھٹلانے والے ہو, جو اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کو, اللہ کے احکام کو, اللہ ذوالجلال والاکرام کے نبی کو, اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانے والے ہو, پھر اس وقت تمہارا کیا معاملہ ہوگا؟ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون پھر اے گمراہ لوگو یعنی حقیقت سے ہٹے ہوئے ہو اور تکذیب بھی کرنے والے ہو, تمہارا حال یہ ہوگا, لآکلون تم کھانے والے ہوگے, من شجر من زقوم تھور کے درخت سے, تمہارا کھانا اس وقت تھور کا درخت ہوگا. فمالئون منہ البطون پھر بھرنے والے, مالا یملا کا مطلب ہوتا ہے بھرنا. درخت جو ہے تھور ایک معروف درخت ہے جس کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں اور اس کا ذائقہ ترش اور کڑوا ہوتا ہے, اور انسان کے کھانے کے لیے کسی صورت بھی وہ مناسب نہیں. یہ اذیت اور جو ہے وہ کہہ لیجیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے طور پر ان کو پیش کیا جائے گا, جو انتہائی کڑوا, اور وہی کھانا ہے, اس کے علاوہ کچھ ہو رہا ہی نہیں. فمالئون پس تم بھرنے والے ہو, منہا اسی کھانے سے, البطون پیٹ, تمہارے کھانا یا پیٹ بھرنا اسی گندے اور حقیر کھانے سے ہوگا یا برے کھانے سے ہوگا. فشاربون علیہ من الحمیم اور پھر جب اتنا ترش اور کڑوا اور برا جب کھایا جائے گا تو پھر پیاس محسوس ہوگی یا طلب ہوگی. فشاربون علیہ پھر تم پینے والے ہو اس پر, من الحمیم کھولتے ہوئے پانی سے. پھر جب وہ کھائیں گے تو واضح بات پانی کی طلب ہوگی, تو پھر میٹھا اور ٹھنڈا پانی نہیں ملے گا بلکہ کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا. فشاربون شرب الہیم
اور उस वक्त फिर वो पानी पिएंगे कैसे, फशारिबूना, बस तुम पीने वाले हो, शुरबल हीम, ऐसे जैसे प्यासा ऊंट पानी पीता है। हीम उस ऊंट को कहते हैं जिनको प्यास की बीमारी लगी हो। ऊंट का वैसे भी मिजाज ऐसा है कि ये ना पिए तो ना पिए, कई देर तक ना पिए, और जब पीने लग जाए तो फिर खूब पीता ही जाता है, पीता ही जाता है। और फिर ऊंटों को एक बीमारी लगती है जिसके अंदर उनकी प्यास और बढ़ जाती है, वो फिर पानी के छोड़ते ही नहीं है, जहां पर मिल गया उसको खत्म करके ही हटना है। तो फिर तुम्हारा अंदाज पीने का उस वक्त ये होगा, फशारिबूना शुरबल हीम, जैसे फिर प्यास की बीमारी वाले ऊंटों के पीने की तरह पीने वाले हो। हादा नुज़ुलुहुम यौमुद्दीन, ये है मेहमान नवाजी उस दिन की, उस क़यामत वाले दिन, उस जज़ा वाले दिन के अंदर तुम्हारी मेहमान नवाजी ऐसे होगी। पहले असहाबुल यमीन का तज़किरा गुजरा कि उनको कैसे नेमतें मिलेंगी, बागात, जन्नत, हूरें, मीठे पानी, फल और परिंदों के गोश्त और वो सारी चीज़ें। तो अब इनकी मेहमान नवाजी का अंदाज ये है जिन्होंने दुनिया के अंदर अल्लाह ताला की बगावत की। अब यहाँ तक तो असहाब शिमाल का तज़किरा था। अब उसके बाद इनको भी और क़यामत तक के आने वाले बाकी लोगों को भी अल्लाह ताला दलाइल से कायल करते हैं, और अल्लाह फरमाते हैं नहनु खलकनाकुम, हमने तुमको पैदा किया, तुम्हारी तख्लीक हमने की। फलौला तुसद्दिकून, तुम मानते क्यों नहीं हो, तुम इसकी तस्दीक क्यों नहीं करते। नहनु खलकनाकुम, हमने ही तुमको पैदा किया, फलौला तुसद्दिकून, तुम इसको सच क्यों नहीं मानते। अब यहाँ पर ये जितने भी आगे दलाइल आएंगे इनके अंदर अमूमी तौर पर मुशरिकीन जो थे वो अकीदा तौहीद का भी इनकार करते थे और अकीदा आखरत का भी, और दो ही बड़ी बुनियादी वजह थी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के या आपकी दावत के इनकार की, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उन्हें कहते थे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, तो ये बुनियादी चीज़ है, और मरने के बाद उठकर फिर हिसाब देना है, दूसरी ये बुनियादी चीज़ है, और वो इन दोनों चीज़ों को मानने वाले नहीं थे। तो अल्लाह यहाँ कहता है कि हमने तुमको पैदा किया, तख्लीक हमारी है, तो फिर तुम इसका इनकार क्यों करते हो, इसको मानते क्यों नहीं। अब तख्लीक हमारी है, इसकी फिर दलील क्या है कि हमारी तख्लीक है। अब सुनिए, अफरई तुम मा तुमनून, क्या तुमने देखा नहीं जो तुम टपकाते हो, जो नुत्फा तुम गिराते हो, क्या ख्याल है तुम्हारा उसके बारे में। यानी यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी सवालिया और इस्तिफामिया अंदाज है कि वो बन कैसे गया नुत्फा। फिर गिराने की हद तक तो चलो फिर भी तुम्हें कुछ ना कुछ इख्तियार था, पहले तो उसके बनाना नुत्फे का, और फिर उसको अगला जो मरहला है कि औरत के रहम तक जो है वो उसको पहुंचाना, और फिर इतना बारीक सेल के या वो छोटे छोटे जरसूमे जो हैं जिसको आम आंख से आम जो खुर्दबीन है उससे भी नहीं देख सकते, तो वो सारे निज़ाम को अब अल्लाह कहते हैं अफराई तुम मा तुमनून, क्या ख्याल है तुम्हारा, क्या देखा नहीं तुमने जो तुम टपकाते हो, तो उसका हशर क्या है, उसका हाल क्या है, और उसके पहले उसके अंदर जान के आसार कैसे हैं, और वो बना कैसे, और वो सारी तफसीलात यहाँ पर। और फिर जब जो तुम्हारा इख्तियार है तुम उसको इख्तियार कर भी लेते हो, अपना इख्तियार इस्तेमाल करने के बाद ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, एक नुतफा टपका सकते हो ना, और फिर उसके अगले जो मराहिल हैं, अब वो उस नुतमे से निकलने वाले जरासीम, और फिर उनका बैदे तक पहुंचना, और फिर तारीकी, और फिर तपश और हिद्दत और सारी चीजें, और उसमें उसको जिंदा रखना, और फिर उसको एक मुकाम इस्तकरार तक ले जाना। अब चलो टपकाने के हद तक तो तुम्हारा इख्तियार होगा, और उसके बाद इस्तकरार का मरहला आता है। कौन है दुनिया में जो इस्तकरार हमल का जो है वो हामी भर ले और कहे कि यकीनी जो है वो इस्तकरार हो जाएगा, मुमकिन नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है। और फिर उसके बाद के मराहिल बच्चे के बनने के और फिर पैदा होने के, और वो सारे जिनको अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो जिक्र किया है। तो यहाँ पर अल्लाह ने इस्तिफामिया अंदाज में कहा, गोया कि यहाँ पर एक तो अल्लाह की वहदानियत है, यानी वो अकेला ही है जो ये करता है। तो पहली जो हमारी तो तख्लीक का कहा है कि हमने तख्लीक किया है, तो अब उसकी इब्तिदा तो यहाँ से हो रही है। और फिर अकल के अंदो अगर यहाँ पर ये सारे मराहिल जो है वो एक अल्लाह की ज़ात अपनी रहमत और कुदरत से कर सकती है, तो क्या दोबारा उसको बनाना मुश्किल होगा। जब तुम्हारा इस इंसान का पैदा होने की इब्तिदा से लेकर कोई इख्तियार नहीं है, कौन बनाता है नुत्फे के अज्जा को इकट्ठा करना और उसका बनाना, और फिर उसके अंदर ये सलाहियत पैदा करना कि वो जान के जो है वो बनाने के काबिल हो जाए। तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम फरमाते हैं अअंतुम तख्लुकूनहु, अब तुमने टपका तो दिया, तो फिर उसके बाद के जो मराहिल, अअंतुम तख्लुकूनहु, क्या तुम उसकी तख्लीक करते हो, अम नहनुल खालिकून, या हम उसकी तख्लीक करने वाले। उसकी तख्लीक, उसके मराहिल जितने भी जिंदगी के हैं, और फिर एक मुकर्रा वक्त तक जो है वो
बिल्कुल जरसूमे से लेकर फिर एक जानदार और चीखते चिल्लाते बच्चे तक, उसके सारे वाकयात जो हैं, तो क्या तख्लीक तुम करते हो या हम तख्लीक करते हैं? यकीनी बात है, इसका जवाब यानी गोया कि अल्लाह ने जवाब यहाँ अदब कर दिया है। कौन है फिर तख्लीक करने वाला? इसमें कोई भी साहिब शऊर और साहिब अकल इनकार नहीं कर सकता कि अल्लाह के सिवा कोई और ऐसा नहीं है जो ये सारे मामलात को सिमटा सके। नहनु कद्दरना बैनकुमुल मौत, जब ये इब्तिदा हमारे पास है ना, तो फिर मौत का फैसला भी हमारे हाथ में। नहनु कद्दरना, हमने मुकद्दर किया है, हमने वक़्त मुकर्रर किया है, बैनकुमुल मौत, तुम्हारे दरमियान मौत का। मौत भी एक मुकर्रर वक़्त पर आनी है। वमा नहनु बिमस्बूकीन, और नहीं है हम मसबूक। मसबूक साबिक कहते हैं जो आगे बढ़ जाए, और मसबूक जो पीछे रह जाए, और साबिक उसको भी कहते हैं जो गालिब आ जाए, और मसबूक उसको जो मगलूब हो जाए या आजिज आ जाए। तो अल्लाह कहते हैं हमने मौत को एक मुकर्रर वक़्त पर जो है वो उसका वक़्त मुकर्रर कर रखा है, और हम हरगिज़ आजिज नहीं हैं, पीछे नहीं रह गए। यानी हम जो है वो सब कुछ तख्लीक करने के बाद और बनाने के बाद अब आजिज आ गए होंगे, अब तुम्हें पकड़ नहीं सकते, या अब तुम्हें जो है दोबारा तुम्हारी तख्लीक नहीं कर सकते, ये नहीं है। और हम हरगिज़ आजिज नहीं हैं। मा नहनु बिमस्बूकीन, और हम कोई मसबूक नहीं है। इस बात से मसबूक नहीं है, अला अन नुबद्दिल अमसालकुम, इस बात से कि हम तुम्हारे जैसे तुम्हें बदल कर तुम्हारे जैसे और ले आए। यानी अल्लाह के पास, अगर उसके पास इतना इख्तियार है कि वो एक कुछ अदम से वजूद बख्श सकता है, तो तुम्हारे जैसे जो दुनिया में मौजूद हैं इनको बदलना उसके लिए मुश्किल है। तो हम इस बात से आजिज नहीं है कि हम अला अन नुबद्दिल अमसालकुम, कि हम बदल दें तुम जैसों को, वनुनशियाकुम, और पैदा करें। नशा यनशाउ, हमारे यहाँ भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है नशा थानिया, यानी दोबारा किसी का बेदार करना या दोबारा से उठाना। तो यहाँ उसी से वनुनशियाकुम, और हम पैदा करें तुम्हें, उठाएं तुम्हें, फी मा ला तालमून, उस चीज में जिसको तुम जानते नहीं। इंसान की सोच, इंसान की फिक्र, इंसान के इख्तियारात महदूद हैं, और इस दुनिया में ये जितनी चीजें देख रहा है, सुन रहा है, मुशाहदा कर रहा है, वहां तक तो ये समझता है, जानता है, लेकिन इसके बाद के मराहिल से बिल्कुल नावाकिफ है। अल्लाह कहते हैं हम इस बात से आजिज नहीं आ गए कि हम तुम्हें बदल दें। यानी अब जो तुम्हारी हालात हैं, अशकाल हैं, अल्लाह चाहे तो यहीं तक तुम्हें बदल के दिखा दे, और फिर उसके बाद अगर दुनिया में तुम्हें खत्म कर दे, तो फिर उसके बाद वनुनशियाकुम फी मा ला तालमून, तुम्हें ऐसी चीज में या ऐसे अंदाज में तुम्हें दोबारा उठाए जिसको तुम जानते नहीं। और हकीकत है, हम तो अल्लाह ताला की बातों पर यकीन रखने वाले हैं। यानी जब इंसान उठेगा तो उसकी हयात अगरचे ऐसी होगी, लेकिन इसके देखने का अंदाज बदल जाएगा, इसके सुनने का अंदाज बदल जाएगा, और इसके बाकी सारे मामलात जो है वो बदल जाएंगे। यानी यहाँ इंसान नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की बनाई मखलूक आग में कितना बर्दाश्त कर लेगा? यानी जलती हुई आग हो तो कितना इंसान बर्दाश्त, आखिर खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर एक नए अंदाजे में जब इंसान को अल्लाह पैदा करेगा, तो फिर वही इंसान होगा, लेकिन फिर मौत नहीं आएगी। और इसी तरह देखने और सुनने का मामला होगा। अब जब तुम देख रहे हो तुम्हारा महदूद विजन है, लेकिन फिर वो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की जात को भी तुम देख सकोगे। तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम कहते हैं वनुनशियाकुम फी मा ला तालमून, तुम्हें उसका बात का इल्म ही नहीं है जो अभी तुम्हारे साथ होने वाला है। और हम इस बात से आजिज नहीं हैं, बल्कि हमारे पास ये सारा कुव्वत और इख्तियार है। और तुम्हारा मामला क्या है, वाला कद अलिमतुम नशातल ऊला, तुमने अब पहली दफा पैदा होने को तो जान लिया ना। वाला कद और यकीनन, अलिमतुम तुमने जान लिया है, नशातल ऊला, पहली दफा पैदा होना। अब कौन इनकार कर सकता है कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा जो पैदा करता है? मुमकिन ही नहीं। जब तुम पहली दफा को जान चुके हो कि सिर्फ अल्लाह ही पैदा करता है, फलौला तज़क्करून, फिर नसीहत क्यों नहीं पकड़ते, फिर उसकी बातों की तरफ क्यों नहीं आते, फिर उसकी कही हुई को सच क्यों नहीं मानते, फिर उसके नबी का इनकार क्यों करते? अफरहीतुम मा तहरुसून, अब दूसरा इस्तिदलाल आ गया। पहले तो अल्लाह ताला ने बराह रास्त इंसानी जात को मुखातब किया, अब इसके अमल को मुखातब कर रहे हैं। अफरहीतुम, क्या तुमने देखा नहीं, मा तहरुसून, जो तुम खेती उगाते हो। हरफ खेती को कहते हैं, तहरुसून जो तुम बोते हो, खेती उगाते हो। क्या तुमने देखा नहीं है? इसके अंदर भी तमाम मुफस्सिरीन तकरीबन इस बात पर मुत्फिक हैं, इसके ऊपर भी दोनों चीज़ों का अल्लाह ताला ने बतौर दलील, यानी अकीदा तौहीद भी और अकीदा आखिरत भी, दोनों यहाँ पर साबित किए हैं। पहले अल्लाह ने कहा कि क्या तुम देखा नहीं जो तुम बोते हो। अब बेजान
दाने तुम मट्टी के अंदर कब्र में छुपा देते हो अंधेरे में, और फिर अंतुम तज़रऊनहु, क्या तुम उसको उगाते हो, उसकी ज़राअत का मामला तुम करते हो, हम नहनु ज़ारिऊन, या हम उगाते हैं। तो अब किसान के पास इस्तिताअत और ताकत इतनी है ना, दाना जाके बखेर दे, लेकिन उस दाने को उगाना और मट्टी के अंदर से उसकी कौंपलों को निकालना और उसको समर आवर बनाने के काबिल बनाना, वो कौन है? अंतुम तज़रऊना हम नहनु ज़ारिऊन, क्या तुम उगाते हो या हम उगाते हैं? यानी जो अल्लाह तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे बेजान दाने को, जिसको तुमने जमीन की तह में फेंक दिया, उसको उगा सकता है, तो क्या तुम्हें उगाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा? तुम्हें नए सिरे से पैदा करना उसके लिए मुश्किल होगा। और इसी से अल्लाह की तौहीद पर भी हो, यानी वो अकेला ही है जो ऐसे जो इन चीजों को उगाता है। कौन है इंसान जो कोई एक दाना उगा अल्लाह के मर्जी के बगैर उगा के दिखा सके? मुमकिन नहीं। और इसी तरह इंसानों का भी और आखिरत भी, यानी जैसे इंसान जो है वो दुनिया के अंदर बोता है तो उसको थमरा काटना होता है, ऐसे ही जो दुनिया में करोगे तुम्हें काटना होगा, और उसका फल वैसा ही होगा जैसे तुम जो बोओगे वही काटोगे। आन तुम तज़रऊना हो हम नहनु ज़ारिऊन, क्या तुम उसे उगाते हो या हम ही उगाने वाले? लौ नशाअ लजअलनाहु हुतामा, अगर हम चाहें तो हम बना दे उसको, जअलनाहु कर दें उसको, हुतामन रेजा रेजा। अगर अल्लाह चाहे तो वो दाना जमीन के अंदर ही रेजा रेजा हो जाए, या जमीन से उगते साथ ही उसको खत्म कर दे, ऐन मुमकिन। फजल तुम तफक्कहून, फिर हो तुम ताज्जुब से बातें बनाने वाले। यानी अगर अल्लाह चाहे, लौ नशा, अगर हम चाहें, लजअलनाहु, हम बना दें उसको, हुतामन रेजा रेजा, हम उसको रेजा रेजा कर दें। फजल तुम, पस रहो तुम, तफक्कहून, ताज्जुब से बातें बनाते, फिर तुम ताज्जुब के साथ बातें बनाते रह जाओ, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, आफत आ गई है, मुसीबत आ गई है, ये दाने सही नहीं थे, बीज खराब था, बेशुमार किस्म, हाँ जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन असल पीछे हर मामला क्या है? अल्लाह अगर ना चाहे तो तुम्हारा वो सारे का सारा निजाम खत्म करके रख दे। इन्ना लमुग़रमून, जब अल्लाह ताला की तरफ से इजाजत ना हो तो फिर कहते हैं हम तो मगरम हैं, यानी हमारे ऊपर तो चट्टी पड़ गई, मेहनत भी गई, पैसा भी गया, कोशिश भी गई। इन्ना लमुग़रमून, बेशक हम तो ऐसे हैं जिनके ऊपर तावान लग गया हो, यानी बगैर किसी किए के इंसान जो है वो कर्ज के बोझ तले आ गया। बल नहनु महरूमून, फिर उस वक्त जो कौल होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि हमें तो चट्टी पड़ गई है, हम जो है वो तो बदनसीब हो गए, महरूम ही हो गए हैं। और यहाँ तक अल्लाह ताला ने दूसरा जो है वो दलील जो है वो जिक्र की कि जैसे अल्लाह दुनिया के अंदर तुम्हारी आंखों के सामने चीज़ों को तख्लीक करके दिखाता है, पौधे उगाता है, तो ऐसे ही उसका इंसान को भी उगाना कोई मुश्किल नहीं है, दोबारा इसको पैदा किया जा सकता है। अब तीसरी चीज, पहले इंसान की जात, फिर उसके खाने पीने का मामला। अब तीसरी जो बुनियादी चीज है इंसान के मुतल्लिक़, उसका तज़किरा। अफ़रअय्तुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून, क्या ख्याल है तुम्हारा, तुमने नहीं देखा वो पानी जिसको तुम पीते हो? अफ़रअय्तुम, क्या तुमने नहीं देखा, अलमा, वो पानी, अल्लज़ी तशरबून, जिसको तुम पीते हो। अब इंसान बजाते खुद भी, इसकी जात के अंदर भी, जैसे अल्लाह ने दूसरी जगह पर कहा है, वफ़ी अनफुसिकुम, तुम्हारी नफ्सों के अंदर अल्लाह ताला ने निशानियां रखी हैं, जात में गौर किया जा सकता है। फिर इंसान के खाने पीने, जो बुनियादी गज़ा जो है उसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, तो उन चीज़ों को जो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है उनको भी पैदा करने वाला सिर्फ वही अल्लाह ही है, और उसके अलावा कोई नहीं। अफ़रअय्तुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून, क्या तुमने नहीं देखा वो पानी जिसको तुम पीते हो। अअंज़लतुमूहु मिनल मुज़्न, अअंज़लतुमूहु, क्या तुमने उतारा है उसको, नाज़िल किया उसको, मिनल मुज़्न, बादलों से, अम नहनुल मुनज़िलून, या हम उतारने वाले, हम नाज़िल करने वाले। अब पानी अमूमी तौर पर, यह पानी की असलियत जो है वो तो खारी है, जो समंदर का असल पानी। कौन है जो वहां से बुखारात को उठाता है और सारी नमकीन जो उसकी नमकीन है वहीं गिराया जाता है, और फिर साफ सुथरा और बेहतरीन पानी जो है वो बादलों के जरिए उठाकर मुख्तलिफ इलाकों तक पहुंचा कर बरसाया जाता है। तो अनज़लतुमूहु मिनल मुज़्न, उन चलने वाले जो बादल हैं उनमें से कौन उसको नाज़िल करता है? इसकी मर्जी के मुताबिक जो है वो बारिशें बरसती हैं। अम नहनुल मुनज़िलून, या हम उसको नाज़िल करने वाले। लौ नशाअ जअलनाहु उजाजा, अगर हम चाहें तो उसको नमकीन बना दें। उजाज नमकीन को कहते हैं, जो समंदर का पानी होता है, खारा।
लौ नशाउ, अगर हम चाहें, जालनाहु, बना दें उसको, यानी उस पानी को जिसको तुम पीते हो हम उसको बना दें उजाजा, नमकीन, फलौला तशकुरून, शुक्र क्यों नहीं करते। अगर वो पानी सेम वैसे का वैसा ही समुद्रों से उठाकर अल्लाह बरसा दे तो सारी की सारी जमीन शोर ज़दा हो जाए। यानी जब नमकीन पानी जहां पर गिरेगा तो वाज़ेह बात है वहां पर खेती तो नहीं उगेगी, वहां पर जो है वो सारी जमीन जो है वो शोर वाली बन जाएगी। तो अल्लाह कहते हैं फलौला तशकुरून, शुक्र क्यों नहीं करते। वो अल्लाह जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पीने का बंदोबस्त करता है, तुम्हारे लिए पानी मीठा जो खारे पानी से उठाकर जो है वो लाता है और तुम्हें मीठा करके देता है, तो तुम उसका शुक्र क्यों नहीं बजा लाते। अब एक चौथी चीज, अफत अफर आई तुम नार अल्लती तूरून, क्या तुमने आग नहीं देखी जिसको तुम जलाते हो। अफर आई तुम नार, क्या तुमने आग नहीं देखी, अल्लती तूरून, जिसको तुम जलाते हो, सुलगाते हो। अन तुम अंशा तुम शजरता, क्या तुमने उसके दरख्त जो है वो पैदा किए हैं। अंतुम, क्या तुमने, अंशा तुम पैदा किए हैं, शजरतहा, उसके दरख्त, अम नहनुल मुनशिऊन, या उसके दरख्त भी हम ही पैदा करते हैं। और यानी अमूमी तौर पर जो है वो आग जलाने के लिए लकड़ी इस्तेमाल होती थी कदीम और आज तक हो रही है। तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने उसी की तरफ इशारा करते फरमाया, अंतुम अंशा तुम शजरतहा अम नहनुल मुनशिऊन, क्या तुम थे जिन्होंने वो उसके दरख्त को पैदा किया या हमने किया है। नहनु जअलनाहा तज़किरा, हमने उसको नसीहत बना दी है, व मताअन, और सामान बना दिया है, लिल मुक़वीन, मुसाफिरों के लिए। मुक़वीन ये वो मुसाफिर हैं खास तौर पर जो सहरा का सफर करते हैं, यानी रात को जब चलते हैं तो उस आग से रास्ता भी देखते हैं और उसी आग के जरिए जो है वो सर्दियों में उससे सहूलत भी उठाते हैं और उसी आग से पका कर खाते भी हैं। तो अल्लाह कहते हैं नहनु जअलनाहा तज़किरा, हमने इसको नसीहत बना दिया, यानी यही आग अगर इंसान इसका सही फायदा ना उठाए तो ये उसका नुकसान करती है, और वही आग अगर उसको हकीकी और सही अनुमानों में इस्तेमाल करे तो उसके लिए फायदे की जगह है। तो न व मताअन लिल मुक़वीन, और सामान बना दिया है, इसको नसीहत बना दिया है, फायदे की चीज बना दिया है मुसाफिरों के लिए। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, बस ए प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने अजीम रब का नाम अपने अजीम रब के नाम की तस्बीह करो। फसब्बिह बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम की तस्बीह करो, अल अज़ीम, जो बहुत बड़ी अजमत वाला है। तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इन आयात में ख़ास तौर पर जो है वो तौहीद और आखरत को वादे किया और क्लियर कर दिया कि इंसान के इख्तियार में सिवाय महदूद इख्तियारात के कुछ नहीं है, और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम असल खालिक है हर चीज़ का, ना सिर्फ इंसान का बल्कि इंसानी ज़रूरियात का भी खालिक वही है। लिहाजा उसी को ये लायक है कि उसकी इबादत बजा लाई जाए, उसका हुक्म माना जाए और उसकी मासियत और नाफरमानी से दूर रहा जाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह जुल जलाल वल इकराम समझने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।